دنیا میں چار عظیم بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور حکومت میں آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کیا۔ ان میں دو مومن بادشاہ تھے، حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جبکہ دو مشرک کافر تھے، بخت نصر اور نمرود۔ آج ہم بات کریں گے نمرود بادشاہ کی۔ نمرود بادشاہ بابل کا حکمران گزرا ہے۔ اس کا نام نمرود بن کنان بن قوس بن سام بن نوح تھا۔ روایات میں نمرود کے بارے اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نمرود نے 400 سال دنیا میں حکومت کی۔ یہ بڑا ظالم اور وحشی بادشاہ تھا۔ اس کے دور حکومت میں بت پرستی عام تھی۔ ہر انسان نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے خدا کی عبادت کو چھوڑ کر عبادت کی اپنے اپنے طریقے بنائے ہوئے تھے۔ 400 سال بادشاہی کرنے کے بعد سرکشی اور تکبر اور غرور اس کی طبیعت میں سما گیا تھا۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا، اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ اس نے کاہنوں اور نجومیوں نے خواب کو بتایا، پھر انہوں نے اس کی خواب کی تعبیر کچھ اس طرح بیان کی۔ انہوں نے کہا، ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا۔ اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے یا مار دیا جائے۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے اس شہر سے دور پہاڑ کی ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ ان کو روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی، ان کا خیال رکھا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا تو یہ بھی قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ ناظرین، دوسری طرف شرک اتنا عام تھا کہ نمرود کے دور میں کوئی ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ نمرود لوگوں کو کہتا تھا کہ میں آپ کا خدا ہوں۔ وہ ہر کسی کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اسی دور میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جو ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے سے دوسروں کو منع کرتے تھے۔ خدا ایک ہے، صرف اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نمرودی قوم ایسی قوم تھی جس پر حضرت ابراہیم کے الفاظ کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سب سے بڑے بت خانے میں چلے گئے۔ وہاں بے شمار بڑے بڑے بت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سب بتوں کو کلہاڑے سے توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب نمرودی قوم اپنے بت خانے میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب بت پاش پاش ہو گئے ہیں، بس ایک بت بچا ہے جس کے کندھے پر کلہاڑا لٹک رہا ہے۔ وہ اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف ہیں، اور وہ بت کی بجائے ہم سب کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نمرودیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑا غصہ تھا۔ انہوں نے اپنے بادشاہ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حرکت کے بارے میں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے سب بتوں کو پاش پاش کر دیا ہے۔ نمرود نے کہا، خدا تو میں ہوں، وہ کون ہوتا ہے جو لوگوں کو مجھے سجدہ کرنے سے روکتا ہے اور بتوں کو بھی پاش پاش کیا ہے؟ نمرود نے حکم دیا کہ ایک جگہ پر لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا دو اور حضرت ابراہیم کو اس آگ میں سزا کے طور پر پھینک دو۔ ناظرین، نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تھا۔ آگ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر کوئی اثر نہ کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں جتنے دن تک آگ میں رہا تو میں اللہ تعالیٰ کے ایک خاص رحم اور کرم میں رہا تھا۔
मैं उस आग में सुकून से रहा था, इतना सुकून मैंने कभी नहीं देखा था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बाहर निकाला गया तो आग से बाहर आते ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूदियों से कहा कि तुम सब अल्लाह ताला की इबादत करो, बुतों की इबादत करना छोड़ दो, ये बुत तुमको जहन्नम की आग की तरफ लेकर जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को समझाते हुए कहा कि तुम अपने बेहुदा कामों से बाज आ जाओ और एक खुदा की इबादत करो। नमरूद पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की किसी बात पर असर नहीं हो रहा था। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा, मैं नमरूद खुदा हूँ। फिर नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम्हारा खुदा कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा अल्लाह ताला है जो हर किसी को ज़िंदगी और मौत देने वाला है, जो पूरी कायनात और आसमानों का मालिक है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बात कही तो नमरूद ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये से सब काम तो मैं भी कर सकता हूँ। नमरूद बादशाह ने दो कैदियों को बुलवाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। इनमें से नमरूद ने एक को मार दिया था और दूसरे को आज़ाद कर दिया था। ये काम करने के बाद नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहने लगा, ये देख मैं खुदा हूँ, मैंने एक को मौत की घाट उतार दिया और दूसरे को जिंदा छोड़ दिया है। इस तरह नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने बेशुमार दलील देते हुए कहने लगा, असल खुदा तो मैं हूँ, अब बता तेरा खुदा कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से ताल्लुक़ करता है और मगरिब में गरूब कर देता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरब से ताल्लुक़ कर और मशरिक से उसको गरूब कर दे। नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद बेबस हो गया और कोई जवाब ना दे सका। इस तरह नमरूद अपनी सारी कौम के सामने जलील होकर रह गया। इससे पहले भी कई बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को खुदा की इबादत और खुदा को एक मानने का हुक्म दे रखा था। नमरूद पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों का कोई असर नहीं होता था। चनाचे हज़रत इब्राहीम ने कई बार नमरूद को दीन हक को कबूल करने की दावत दी थी। नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस अमल से तंग आ चुका था। बादशाह नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा, अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसको कह दे कि मेरे साथ जंग करे। उसको बोल दो कि अपना लश्कर ज़मीन पर उतारे जो मुझसे जंग करे। खुदा मैं नमरूद हूँ, मेरे सिवा किसी में कोई हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सामने खड़ा हो जाए। नमरूद की ज़बान से ये लफ्ज़ों का निकलना ही था कि हज़रत इब्राहीम की बारगाह में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ आए और फरमाने लगे कि अल्लाह ताला का लश्कर जंग करने के लिए तैयार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही अल्फाज नमरूद को कह दिए कि अल्लाह ताला का लश्कर जंग करने के लिए तैयार है। हज़रत इब्राहीम की बात को सुनकर नमरूद ने जंग की तैयारी करने के लिए 3 दिन मांग लिए। अल्लाह ताला की तरफ से नमरूद को 3 दिन का वक्त दिया गया। 3 दिन तक नमरूद ने सारी दुनिया से बड़े बड़े नामी ग्रामी जंगजुओं को बुलवाया भेजा। वो नमरूद की तरफ से जंग लड़ने के लिए तैयार होकर आ गए। जब नमरूद का सारा लश्कर इकट्ठा हो गया तो नमरूद ने कहा, है इब्राहिम, मैं जंग के लिए तैयार हूँ। जो मैंने 3 दिन मांगे थे वो पूरे हो गए। तुम अपने रब की फौज को बुला लो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह ताला ने नमरूद से जंग करने के लिए मच्छरों का लश्कर भेज दिया, जिसकी तादाद नमरूद के लश्कर के कई गुना ज़्यादा थी। अल्लाह ताला के भेजे गए मच्छरों ने चंद ही लम्हे में नमरूदी फौज पर हमला किया और उसकी फौज का खून चूस लिया। नमरूद की फौज में हड्डियां ही हड्डियां नजर आने लगीं। जब नमरूद ने अपने लश्कर की ये हालत देखी तो वो सब कुछ छोड़कर अपने महल की तरफ भाग गया और अपने बीवी के कमरे में जाकर छुप गया। एक लंगड़ा मच्छर नमरूद का पीछा करते हुए उसके महल में दाखिल हो गया था। कमरे में दाखिल होते ही नमरूद ने अपनी बीवी को कहा, इस मच्छर ने सारी फौज को हलाक और बर्बाद करके रख दिया है। ये बात कर ही रहा था कि अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए एक मच्छर नमरूद की नाक में चला गया।
मच्छर नाक से होता हुआ दिमाग तक जा पहुंचा। मच्छर दिमाग में जाकर दिमाग को काटने लगा। जब मच्छर दिमाग को काटता तो नमरूद तकलीफ से अपने सर को पागलों की तरह दीवारों के साथ मारता था। इस तरह वह मच्छर नमरूद के दिमाग को कई दिन तक खाता रहा। नमरूद ने ये हुक्म जारी कर रखा था कि जो कोई भी नमरूद के पास आए तो अपनी जूती उतारकर नमरूद के सर पर जूते मारे। इस तरह नमरूद को चंद देर तक सुकून रहता था। थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद नमरूद तकलीफ से बेहाल हो जाता था। इस लंगड़े मच्छर के काटने से नमरूद अपने सर को दीवारों से मारता था। इसी सज़ा में तड़पता तड़पता नमरूद इस दुनिया से चल बसा। इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला को किसी का शरीक मत ठहराया जाए। नमरूद का हाल हमारी आंखों के सामने है। किस तरह नमरूद पागलों की तरह दीवारों के साथ सर मार मार कर रोता और चलाता था। इसका अंजाम क्या हुआ, इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला एक है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जो कोई भी अल्लाह ताला की ज़ात को ललकारता है तो अल्लाह ताला उसका अंजाम बहुत ही बुरा करता है। दोस्तों, अल्लाह ही की पाक ज़ात है जो हमारे राज़िक, रिज़्क़, खालिक और मालिक है। वही मौत और ज़िंदगी देने वाला है। दिन रात, सूरज, चाँद, सितारे कोई भी इसकी मर्ज़ी के बगैर हरकत नहीं कर सकते। और जो खुदा की नाफरमानी करता है एक न एक दिन वो इज़ाबे इलाही में ज़रूर मुब्तला होता है। तो बस हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें और कभी भी किसी बात का गरूर ना करिए।